তারাপীঠ দর্শনের পর দেওঘর ফেরার পথে বিপাকে পড়লেন গোরখপুর অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা প্রায় 60 জন কাওয়ারিয়া। বীরভূম জেলার মল্লারপুরে রাজ্য পরিবহন দফতর বাসটিকে আটকে দেয়। অভিযোগ, বাসের পারমিট চান। বাস চালক পারমিট দেখালেও দফতরের আধিকারিকরা দাবি করেন সেটি প্রমাণস্বরূপ বৈধ নয়, বরং বাস মালিকের ওপর 1.94 লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করে। টাকা না দিলে বাস ছাড়বে না, এমনই জানিয়ে দেন আধিকারিকরা। ফলে শিশু ও মহিলা সহ যাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ বাসের ভেতরেই আটকে থাকেন। খাবার ও জল ছাড়াই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে যাত্রীরা 14 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু বাস মুক্ত করতেই ব্যর্থ হন। পরে পুলিশ এসে অবরোধ সরিয়ে দেয়। এ বিষয়ে বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়শঙ্কর সিনহা তিনি কি বলছেন শুনবো। কি হয়েছে? কি হয়েছে বলতে, আমাদের ইউপির একটি গাড়ির পেপার ঠিক আছে, যেটুকু শুনলাম বা বুঝলাম এখানে গাড়ির পেপার ঠিক আছে। ওরা বেঙ্গলে ঢোকার পর যে ট্যাক্স কাটতে হয় সেটা ট্যাক্স কেটেছে, কিন্তু সেটা এখন এখানকার এমভিআই থেকে বলছে ওটা জালি। তো জালি যদি কেউ করেছে তাহলে বেঙ্গল থেকে আমাদের করেছে, ইউপির লোকে তো কোনো দোষ নেই আর ইউপির বাসেরও কোনো দোষ নেই। আজকে সারাদিন আটকে রেখে এখন এই ছোট ছোট বাচ্চা, ছেলে মেয়ে, বয়স্ক লোক আছে, এক বাস প্রায় 65-70 জন লোক, তাদের খাওয়া দাওয়া নেই, লাইটের ব্যবস্থা নেই, কিচ্ছু নেই, গাড়িটা আটকে রেখে দিয়েছে। আমাদের কাছে খবর যাওয়াতে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি এই ব্যাপার। তো আমাদের তো মনে হচ্ছে এখন যে এইটাই ইনস্ট্রাকশন এসেছে দিদিমণির হয়তো, যে ইউপি বা অন্যান্য দেশে অন্যান্য জায়গাতে যে মাইগ্রেন্ট লেবারদের যেটা বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের উপর যেটা চলছে, ওরা সেইভাবে আমাদের ইউপির দেখে নাম্বার চালাও, এদেরকে হ্যারেস করো, এইটাই ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো যতক্ষণ না এদের সুষ্ঠুভাবে গাড়ি ছাড়া বা এদের নির্দিষ্ট জায়গায় ওদের গন্তব্যস্থলে না পৌঁছাচ্ছে, আমরা কিন্তু ছাড়বো না, আমরা কিন্তু আন্দোলন করব এবং প্রয়োজনে আমরা রাস্তায় বসবো, সারা রাত আমরা রাস্তায় বসে থাকবো, কিন্তু আমরা এর একটা বিহিত না করে ছাড়বো না। কি নাম আপনার? আমার নাম জয়শঙ্কর সিনহা, আমি বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমাদের বোলপুর সাংগঠনিক। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা রমেশ শর্মা কি বলছে শুনে নেব। क्या हुआ है? सब देख लीजिए कि हम लोग जो है तारापीठ माता जी के दर्शन करके आ रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों का ये चौराहे पे आरटीओ साहब से मुलाकात हो गई हमारी। तो उन्होंने हमारी गाड़ी का टैक्स मांगा, जो कि बंगाल स्टेट का टैक्स उन्होंने मांगा। मैंने टैक्स कटाया हुआ था बंगाल स्टेट का, तो मैंने टैक्स कटाया हुआ, तो मैंने सर के पास ले गया, मैंने दिखाया अपनी कागज़ को। तो सर ने कहा कि आपका जो, जब उन्होंने टैक्स को जांच किया तो उन्होंने बताया कि आपका टैक्स फर्जी कटा हुआ है। तो मैंने बोला सर मैं चेक पोस्ट इस्लामपुर से कटाया हूँ, इस्लामपुर चेक पोस्ट से मैंने कटाया था उसको। तो मैंने सर से उस जहाँ से कटाया था उससे भी बात मैंने करा। पहले उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं चालान करूँगा सीधे सीधे। उसके बाद थोड़ी देर का बड़ा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने उससे बात किया। फिर उन्होंने उनसे बंगाली भाषा में उन लोगों से बातचीत हुई। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बात किया। उसके बाद उन्होंने हमारी गाड़ी का 1,94,435 रुपये का चालान कर दिया और कहा कि जब तक ये पैसे पेमेंट नहीं होंगे तब तक गाड़ी आप कृषि मंडी में खड़ी कर दीजिए। और कृषि मंडी में खड़ी होने के बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था है यहाँ हमारे पास, न कोई हम लोग के हेल्प के लिए पूछ नहीं रहा है कि बाबू आप लोग खाए कि नहीं खाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी दवा चल रही है, कुछ लोगों के पैर फूट गए, चल नहीं पा रहे हैं लोग। तो प्रशासन की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमने किसी अदर स्टेट के कांवरिया संघ को मैंने बंधक बनाया है, अगर वो भी ऐसे जगह जहाँ कि दूर दूर तक कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे कामाख्या से, गुवाहाटी से आ रहे थे। आपका घर कहाँ? घर हम लोग का यूपी गोरखपुर है। आज सुबह तारापीठ आए थे? हाँ, सुबह तारापीठ आए हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले हैं। तो ये जो सालसर चौराहा जो आपका पड़ रहा है, वहीं सर से हमसे मुलाकात हो गई है। तो आप बस का टैक्स कहाँ काटे हैं? इस्लामपुर में हमने काटा है टैक्स। इस्लामपुर में चेक पोस्ट बना हुआ है, वेस्ट बंगाल का चेक पोस्ट, फर्स्ट चेक पोस्ट।
दलकोड़ा बॉर्डर से 4 किलोमीटर आगे पहला चेक पोस्ट, वहीं पर एक वर्दी पहने हुए वर्दी धारक पुलिस वाले थे। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा गाड़ी का टैक्स कटाना है बंगाल का। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, किसी से बात किया। अब कौन आदमी था उनसे बात किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आप गाड़ी का आरसी और ड्राइवर लाइसेंस लेके आइए। मैंने अपने सीनियर ड्राइवर से तुरंत कहा कि ऐसी बात है कि लेके आइए। हम लोग 1 घंटे तक वहाँ इंतजार किए। 1 घंटे के बाद उन्होंने टैक्स कटवा के हमारे व्हाट्सएप पे भिजवाया। अब मैंने उनको दिखाया बाकायदे से कि जो कि मेरे मोबाइल में आज भी मौजूद है। उन्होंने हमारे पास भेजा था तो डायरेक्ट गाड़ी का कागज मैंने ड्राइवर दिखाया। जब हम लोग साहब करा के आए, ये देखिए ये जो टैक्स है उन्होंने काट के मुझे दिया था। यही टैक्स मैंने यहाँ के अधिकारियों को दिखाया था ना। ये जो टैक्स है मैंने यहाँ के अधिकारियों को दिखाया था ना। तो इन्होंने कहा कि ये टैक्स फर्जी है। ये बताइए कि यहाँ के चेक पोस्ट पे फर्जी टैक्स कट रहे हैं तो हम कहाँ कटवाएं। आपने बॉर्डर ख़त्म कर दिया। बॉर्डर पे कोई आरटीओ अधिकारी नहीं मिलता है कि मैं टैक्स कटाऊं। चेक पोस्ट पे जाता हूं तो वहाँ ऐसी फर्जी वाला टैक्स कटवाते हैं आप ही के विभाग के लोग। तो बताइए हम परिवहन विभाग के ड्राइवर कितने लोग हैं आप? कितने लोग हैं आप? हम लोग बड़े लोग 62 लोग हैं। अब बच्चों से मिला के 65-75 लोग हो जाएंगे। सुबह से कुछ खाया पिया? 65 सुबह से हम लोग 2 दिन से कुछ खाए नहीं हैं, क्योंकि बरसात की वजह से जगह यहाँ कहीं किसी के दरवाजे पे जाते थे जगह नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से 2 दिन से हमारे लोग कोई खाना नहीं खाया है। आज सुबह से कोई पानी? सुबह से वही हल्का फुल्का चाय, सुबह ब्रश करके लोग एक ढाबे पर हम रुके थे, वहाँ चाय पिए। उसके बाद माता जी का हम लोग दर्शन किए। दर्शन करके हुआ है कि हम लोग चलेंगे तारकेश्वर नाथ। वहाँ हम लोग गाड़ी खड़ा करेंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग वहीं भोजन बना के करके रात में हम लोग गंगा सागर के लिए निकलेंगे। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले, ताकि आगे आने वाले किसी भी ड्राइवर या किसी भी परिवहन विभाग के किसी भी लोगों के लिए ये दिक्कत न हो। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रामललित शर्मा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश से, यूपी से रहने वाले, योगी जी के क्षेत्र से। योगी जी के समझ लीजिए कि उनके घर के बगल से हूँ मैं। তবে অনুমতি সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রশাসনের একতরফা পদক্ষেপে চরম দুর্ভোগের শিকার হলেন নিরীহ তীর্থযাত্রীরা। এই ঘটনায় প্রশাসনিক ভূমিকা ও মানবিক দিক থেকে উঠেছে প্রশ্ন। বীরভূম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আপনি কি কিডনি রোগে ভুগছেন? তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জীবন রেখাতে। এখানে বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তাররা লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রোগীদের সমস্ত ধরনের কিডনির এবং প্রোস্টেটেটের অপারেশন করে থাকেন। রোগী দেখছেন নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর অর্কপ্রভা চক্রবর্তী, SSKM হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর সুনীল কুমার, অ্যাপেলো হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর পিনাকি মুখার্জি, NRS হসপিটাল, কলকাতা। এছাড়াও এখানে প্রতিদিন অপারেশন করছেন ও বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন ইউরোসার্জন ডক্টর আতার কাশিম, PG হসপিটাল, কলকাতা। তাছাড়াও এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সুবিধা রয়েছে। আমাদের ঠিকানা রায়গঞ্জ, উকিলপাড়া। বিশদে জানতে কল করুন 8373066655 অথবা 8373066644 এই নম্বরে।
আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌর বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে বিএসসি, ডব্লিউবিসিএস, ব্যাংক, রেল, আইসিডিএস, নার্সিং, এএনএম এবং জিএনএম সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা খড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।